گیس کے حوالے سے شہر اولیا ملتان میں سردی بڑھتے ہی گیس نایاب ہو گئی ہے۔ کوئلے اور لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی شدید پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سردیوں کی شدت بڑھتے ہی شہر اولیا میں گیس نایاب ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر گیس ہو بھی تو پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا نہیں بن سکتا۔ بچے اسکول بھوکے جاتے ہیں۔ باہر سے روز روز کھانا خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ فیملی بڑی ہو اس کے لیے تو بڑی پریشان بات ہے، کیونکہ 3 ٹائم کا کھانا بنانا اور پھر گیس بھی آتی ہے، لیکن آتی ہے چند منٹ کے لیے اور اس کے بعد جناب لکڑیوں پہ گزارا بہت مشکل ہے۔ اوپر سے LPG مہنگی ہے، وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں گیس والے۔ ناشتہ کہاں پکتا سر جی؟ آپ وہ جب گیس نہیں ہوتی، جب گیس آتی تو لائٹ نہیں ہوتی، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب کیا کریں؟ بازار سے لیتے ہیں روٹی، ایک 10 روپے کی، 12 روپے کی، 15 روپے کی ہے۔ اب ناشتے میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں، دکان کا کرایہ شرایہ کہاں سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بھوکے ہوتے ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ایسے میں لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ لکڑی 1200 روپے من اور LPG 220 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی سے پہلے ہی تنگ ہیں، اب لکڑی اور کوئلہ بھی ان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اب تو گھر میں گیس بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں لکڑیاں لے کے جانا پڑتی ہیں۔ پہلے لکڑی تھی 700 روپے من، اب لکڑی ہے 1200 روپے من۔ تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میں خود ہوٹل والا ہوں، روٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ کوئی گاہک اگر روٹی بھی لینے آتا ہے تو وہ بھی ہم سے جھگڑ کے لے کر جاتا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، ہم 15 روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں۔ اب گاہک جو بھی یہاں آتا ہے وہ ہمارے سے لڑتا جھگڑتا ہے، کہتے ہیں خان صاحب آپ لوگوں نے لکڑی مہنگی کیوں ہے؟ تو ہم نے مہنگی نہیں کی ہوئی، لکڑی پیچھے سے مہنگی ہو گئی ہے۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے نا لکڑی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے دہائیاں دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس شدید سردی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ کیمرامین ارشد گجر اور ساتھی رپورٹر ابراہیم خان کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ ملتان میں شہریوں کے لیے سرکاری آٹے کا حصول مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور۔ شہریوں نے حکومت سے سستے آٹے کی فوری فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہی ہے سہیرا طارق۔ ملتان میں شہریوں کے لیے سرکاری آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے سارا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ لگے ہوئے 10 کلو آٹے کے لیے، تو حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اوپن سبسڈی دے، بندہ جہاں سے بھی مرضی لے لے۔ یہاں تو سارا دن لگ جاتا ہے 10 کلو تھیلے کے پیچھے۔ بہت رش ہے، اتنا صبح سے کھڑے ہیں لائن کے اوپر، 650 روپے کا آٹا ہے، 3 گھنٹے سے یہیں کھڑے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کیا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے یا کوئی ٹیم بنائے جو ایکشن لے ان کے خلاف۔ دوسری طرف ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ملتان آصف رضا کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈویژن بھر میں 60 سیل پوائنٹس پر روزانہ کی بنیاد پر 80,000 آٹے کے تھیلے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ملتان ڈویژن میں اس وقت جو ہے کسی قسم کی آٹے کی سپلائی کے حوالے سے کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ 1766 شاپس ہیں جن پہ ہم ڈیلی آٹا سپلائی کر رہے ہیں، اور اس میں 10 kg کے جو ہمارے تھیلے ہیں 81,000 کے قریب ہیں وہ جو دے رہے ہیں، اور 10,000 کے قریب ہمارے 20 kg کے آٹے کے تھیلے جو ہم سپلائی کر رہے ہیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا ہے کہ اتنی مشکل سے آٹا خریدنے کے بعد بھی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ سستے آٹے کے سٹالز پہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 650 روپے مقرر ہے، جبکہ عام مارکیٹ میں آٹے کی قیمت کافی زیادہ ہے۔ کیمرامین ہارون اور ساتھی رپورٹر بلال نیازی کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ رنگپور میں دیگر ادویات کے ساتھ انسولین بھی نایاب ہو گئی۔ شوگر کے مریض انسولین کی عدم دستیابی سے پریشان ہیں۔ انسولین کی قلت کے سبب میڈیکل سٹور والے منمانی قیمت وصول کرنے لگے۔ دیکھیں رانا پرویز اختر کی یہ رپورٹ۔ رنگپور میں مارکیٹ سے انسولین غائب، شوگر کے مریض انسولین کے حصول کے لیے مارے پھرنے لگے۔ میڈیکل سٹور مالکان انسولین کی منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ 800 روپے میں فروخت ہونے والی انسولین کی 1100 جبکہ 1100 والی انسولین کے 1800 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں انسولین دستیاب نہیں ہے، اگر مل جائے تو ڈبل قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ دل کے امراض، مرگی اور موسمی بیماریوں کے ادویات بھی مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔
इंसुलिन लेने के लिए जो है वो मुख्तलिफ फार्मेसीज पर जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो अभी तक इंसुलिन नहीं मिली, और कहीं से मिल भी जाती है तो उसकी कीमत डबल हो चुकी है। जो 800 वाला इंजेक्शन है वो 1100 में, और 1100 वाला जो है वो 1800 के अंदर जो है वो इंजेक्शन मिल रहा है। हम इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस किल्लत को फिलफौर जो है वो मुकम्मल किया जाए। इंसुलिन खरीदने के लिए आए, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में है वो दस्तयाब नहीं है इंसुलिन, और डबल कीमत पे जो है फरोख्त हो रही है। हुक्मरानों से मुतालबा है कि मेहरबानी करें, कुछ इसके अद्वियात की जो है उसकी किल्लत को, कमी को पूरा किया जाए। शहरियों ने मजीद कहा कि इंसुलिन की किल्लत से शुगर के मरीज परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के साथ साथ अद्वियात की किल्लत ने भी परेशान कर रखा है। इंसुलिन खरीदने आए थे, जो 800 रुपए की इंसुलिन है वो 1100 रुपए की हो चुकी है, और जो 1100 रुपए की थी वो 1800 रुपए में मिल रही है। अद्वियात की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इसको पूरा किया जाए ताकि गरीब आदमी अद्वियात ख़रीद सके। इसकी जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उन पे मिलनी चाहिए ताकि गरीब बंदा जो है अद्वियात खरीद सके। जितने मेडिकल स्टोर हैं उनके पास प्रॉपर मेडिसिन है ही नहीं, शॉर्टेज का इतना शॉर्टफॉल हो गया है कि जो जो मेडिसिन इनके पास है अपनी मर्जी के रेट पे ये सेल कर रहे हैं। इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं है, जिसके पास है वो अपनी मर्जी के रेट से बेच रहा है। हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, उन पेशेंट के लिए भी अद्वियात नहीं मिल रही, तो जिन लोगों के पास ये अवेलेबल हैं वो उसको ब्लैक करके बेच रहे हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं कि होलसेल मार्केट से ही इंसुलिन महंगी मिलती है, सस्ते दामों कैसे फरोख्त करें। शुगर की जो इंसुलिन है वो बहुत महंगे दामों मिल रही है होलसेलर से। ये हमें नहीं पता कि होलसेलर महंगी दे रहे हैं या उन्हें कंपनी महंगी दे रही है, ये तो हुकूमत का काम है ना, चेक एंड बैलेंस रखे। अब हमें महंगे दामों मिलेंगी होलसेलर, तो हमने तो महंगी बेचनी है, और गाहक हमसे तू तकरार करता है कि आप क्यों महंगी बेच रहे हैं। शहरियों ने इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की किल्लत को फौरी दूर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुल्तान इंतजामिया की गफलत शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करने लगी। कासिम बेला की मेन शाहराह पर तजावुज़ात की भरमार, जगह जगह लगी रेहड़ियां दुकानों के साथ साथ शहरियों के लिए भी दर्द-ए-सर बन गईं। मजीद जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्तान मेट्रोपॉलिटिशन कॉरपोरेशन और इंतजामिया की गफलत, कासिम बेला के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। कासिम बेला की मेन शाहराह पर तजावुज़ात की भरमार है। रेहड़ी बानों की वजह से दुकानदारों के साथ साथ राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया को 12 मरतबा शिकायत की मगर कोई भी एक्शन नहीं लेता। कारोबार तो बहुत ज्यादा मुतासर हो गए तजावुज़ात की वजह से। आए रोज कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और यहाँ पे, और लोगों को गुजरने का रास्ता भी बहुत तंगी होती है। शहरियों का कहना था कि रोड ब्लॉक होने से शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। दुकानों के सामने रेहड़ियां खड़ी होने से कारोबार भी शदीद मुतासिर होता है और रश भी लग जाता है। यहाँ पे रक्षा वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ट्रालियां, ट्रैफिक, तो ये देखे बेहंगम ट्रैफिक है, गुजरना इतना माहौल हो जाता है, काफी बात का तो एक्सीडेंट होते बचे हमारे। दुकानदारों ने कॉरपोरेशन हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रेहड़ी बानों को मुनासिब जगह फराहम की जाए ताकि मुश्किलात में कमी हो सके और उनका कारोबार भी मुतासिर न हो। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी का सड़क की तामीर, सीवरेज मंसूबे का दौरा, MDA चौक से रजा आबाद तक सड़क की तामीर, ऑफिसर कॉलोनी सीवरेज का मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर उनका क्या कहना था। मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। MDA चौक से रजाबाद सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। MD वालसा की जानिब कमिश्नर मुल्तान डिवीजन को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग कहा। वो सीधा सीवरेज लाइन पर अब ग्राउंड फेलियर का वाकया पेश नहीं आएगा। मंसूबे के तहत 2021 फुट तवील आपको अहम खबर दें, मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी का सड़क की तामीर है और सीवरेज मंसूबे का दौरा है। MDA चौक से रजा आबाद तक सड़क की तामीर, ऑफिसर कॉलोनी सीवरेज का मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था मंसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाएगा। MDA चौक से रजा आबाद सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म होने के करीब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के दौरा के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के काम में तेजी आ गई। एडिशनल सेक्रेटेरिएट पंजाब फारूक डोगर का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 8 माह में सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का काम 25% मुकम्मल कर लिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर का मंसूबा 30 माह पर मुश्तमिल था। सिविल सेक्रेटेरिएट का काम मुकम्मल होने से जनूबी पंजाब के दरीना मसाइल का इजाला मुमकिन हो सकेगा।
जो हमारा टारगेट है कि हमने 2023 में इसको जो है आईडैप ने ये बिल्डिंग हैंडओवर करनी है, और वो तमाम जितने भी सेक्टर्स जो अब इस वक्त मुख्तलिफ दफातर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में मौजूद हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग में अगर मैं कहना चाहूँ मौजूद हैं, तो वो एक जगह पर मौजूद होंगे। और जितने भी कंप्लेंट्स या तरक्याती काम के हवाले से जो भी आपके जो साउथ पंजाब की आवाम के हवाले से जो भी होंगे, तो वो एक ही रूफ के नीचे इंशाल्लाह ताला वो तमाम जो है जो उनके इश्यूज जो है वो इंशाल्लाह हल होंगे। इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है कि हमने 2023 में इसको जो है आईडैप ने ये बिल्डिंग हैंडओवर करनी है, और वो तमाम जितने भी सेक्टर्स जो अब इस वक्त मुख्तलिफ दफातर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऑफिस में मौजूद हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग में अगर मैं कहना चाहूँ मौजूद हैं, तो वो एक जगह पर मौजूद होंगे। और जितने भी कंप्लेंट्स या तरक्याती काम के हवाले से जो भी आपके जो साउथ पंजाब की आवाम के हवाले से जो भी होंगे, तो वो एक ही रूफ के नीचे इंशाल्लाह ताला वो तमाम। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी सूबा पंजाब शुएब इमार सदीकी मुल्तान बोरेवाला रोड को असर नौ तामीर के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। काफी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारी इस दावत पर तशरीफ लाए हैं। आप सब लोग इस वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं और बखूबी जानते हैं कि गुज़श्ता एक लंबे अरसे से जनूबी पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर किसी भी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। एक लंबा अरसा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, फिर इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस जनाब बुज़दार साहब हुकूमत में रहे, और अब परवेज़ इलाही साहब हुकूमत कर रहे हैं। पूरे जनूबी पंजाब का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस्लाह को आपस में मिलाने वाले रोड्स हैं, खंडरात का मंजर अमली तौर पर पेश कर रहे हैं बुरी तरह बेतपा। उसमें अगर हम एक रोड ये मुल्तान से लेके बुरेवाला तक का 135 किलोमीटर लंबा ये रोड है, इसका अगर तज़किरा करें, अव्वल तो पहले यहाँ की आवाम का मुतालबा ये था कि ये एक सिंगल रोड है, और सिंगल रोड इस पर हैवी ट्रैफिक चलती है, इस पर बड़े बड़े ट्रॉलर चलते हैं, और इसकी वजह से हादसात होते हैं। लेकिन अब तो गुज़श्ता कई सालों से 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, इस रोड पर कोई पैच वर्क भी नहीं हुआ, बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं। यानी जो हमने सरकारी इदारों से जो दादोशुमार लिए हैं, मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये होशरुबा हैं। इस एक साल 1 जनवरी 2022 से लेके आज की तारीख तक 2022 में इस सिर्फ 135 किलोमीटर लंबे रोड पर 7,372 हादसात हुए। यानी अगर इसको आप रोजाना की औसत निकालेंगे तो कहां पर बात जाके पहुंचेगी, 10,764 जख्मी हुए हैं इसमें, और 414 अमवात हुई हैं। अच्छा, ये जो अमवात हैं ये तो वो हैं जो रेस्क्यू के जरिए हॉस्पिटल्स में ले जाई गई या मौके पर डेथ हो गई। लेकिन इन अमवात के साथ साथ जो हमारे निश्तर हॉस्पिटल की इमरजेंसी की तरफ रेफर करते हैं, यानी इन छोटे टाउन्स में जहानिया है, मखदूम रशीद है, टिब्बा सुल्तान। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा की याद में शमे रोशन की। तकरीब का अहवाल जानते हैं महर इमरान की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीब का इनेकाद। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग और कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी अमीन साजिद ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। मिर्जा अजीज अकबर बेग का इस मौका पर कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ही जमहूरियत के लिए मशाले रहा है। आज पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत भी भुट्टो खानदान की मरहूने मिन्नत है। भुट्टो साहब के बाद उन्होंने पार्टी को संभाला और बहुत काम किया, और हम ये समझते हैं कि दुनिया में आप देखें तो उस जैसा सियासतदान नहीं था कोई, और उनके हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उनका। हाजी अमीन साजिद ने कहा कि मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल गढ़ी खुदा बख्श पहुंचकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर हाजिरी देंगे। उन्होंने अपने वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम को मजबूत किया, और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साबित किया दुनिया के अंदर कि वाकई कोई जमहूरियत पसंद कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मोहतरमा की 15वीं बरसी के मौका पर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्तान से गढ़ी खुदा बख्श हम रवाना होंगे। तकरीब के शुरका ने इस मौका पर मोहतरमा की याद में शमे रोशन की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान।